ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਦੋ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲੱਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ 12 ਮਾਹ 12 ਮਾਹ ਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਨਾਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੌੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 134 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਾਂਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਣੀ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਣੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਣੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਾਂਤ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
सिख अठे पैर पूजा कीचै, नाम ध्याईऐ बिन नावै पूज न होई। सिख का ये जीवन है। सिख हर समय अपने गुरु के बचनों चेते रखता तो गुरु के बचनों की विचार करता। जिवें आप पातशाह के बचन पढ़ते हैं कि जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै, तो सन्मुख सिख कोई जियो रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय ध्याए, अंतर आत्मै संभाले। आप छड़ सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जानै कोय। कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सन्मुख होए। वो फिर सिख सतगुर दे सन्मुख हो जाता। वो सचियार सिख बैठे सतगुर पास, वो शोभा पाते हैं। सो सिख जिहड़ा है शब्द का उपासक। सिख एक गुरु ग्रंथ साहिब मरण मनण वाला, एक अकाल पुरख ते विश्वास रखण वाला। सिख किसी सूरज नूं पानी नहीं दिंदा, चंद्रमा नूं सजदा नहीं करता, किसी देवी देवतियां दी देवरियां उत्ते जाके सजदा नहीं करता। सिख केवल शब्द का उपासक है। तो कलगीधर पातशाह महाराज ने सानूं समझा दिता। जाप साहिब की पावन बाणी विच कलगीधर पातशाह महाराज नूं पुछो, सतगुरु कहंदे ने नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे। हुण सतगुरु जी ने इत्थे ये नहीं आख्या कि सूरज नूं नमस्कार है। पातशाह कहंदे नमो सूरज सूरजे, कि जिहदे हुक्म दे विच हज़ारां सूरज लखां सूरज चढ़ते ने, डुबदे ने, चढ़ते ने। कहंदे उस परमेश्वर रूपी सूरज नूं मेरी नमस्कार है, उन्होंने मेरी सजदा है, अकाल पुरख नूं सजदा है। जिहदे हुक्म विच हज़ारां चंद्रमा डुबदे हज़ारां चढ़ जाते हैं। तो ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरु नूं परमेश्वर रूपी चंद्रमा नूं मेरी सजदा है, नमस्कार। राजियां दे राजे, इंद्रां दे इंद्रे, ऐसे मालक प्रभु नूं मेरी नमस्कार है। इस तरह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे होर बचन आउंदे ने, जिन्हां दे बाबत सतगुरु जी ने खुद बचन कीते ने कि हे रब, हे सस, हे करुणा निध, मेरी अब बिनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कश, चाहत हो चित मैं सोई कीजै। हुण कई बारी आम मनुख नूं भुल भुलेखा लग जाता कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज चंद्रमा नूं सजदा कर रहे, नमस्कार उस तरह सूरज नूं कह रहे ने। क्यों रब का अर्थ है सूरज, सस का अर्थ है चंद्रमा। कि सूरज नूं सतगुरुओं के चरणों 'च बेनती करनी, गुरु सवारिओ परमेश्वर रूपी सूरज की गल की गई है, अकाल पुरख की गल की गई है कि हे परमेश्वर रूपी सूरज। क्योंकि जिमें सूरज चढ़ना प्रकाश हुंदा है, इस तरह परमेश्वर वाहिगुरु साडे हिरदियां दे अंदर गुरु की किरपा दे गुरु पातशाह नूं प्रेर के सतगुरु दे गुरु साडे अंदर ज्ञान का प्रकाश करता है। परमेश्वर दे तेज प्रताप इन्ना है कि सूरज का प्रकाश परमेश्वर दे तेज प्रताप अगे मध्यम पै जाता। जिमें आपां देखते हैं सूरज का प्रकाश होया, धरती उत्ते सूरज चढ़िया, तो सूरज चढ़न दे नाल गुरु सवारिओ जदों आपां चढ़ते सूरज वाल आपां अखां 'च अखां पा के देख नहीं सकते, नहीं देख सकते क्योंकि तेज बड़ा। जे आपां देखांगे साडी लाइट रोशनी साडी नेत्रां दी चली जाएगी। तो परमेश्वर वाहिगुरु का प्रकाश तो कई हज़ारां वध है, तो आपां उहदे वल किवें देख सकांगे। इस करके परमेश्वर के चरणों 'च बेनती की गई है कि हे रब, हे सस, हे करुणा निध, हे कृपा दे निध खजाने, हे वाहिगुरु मेरी अब बिनती सुन लीजै। मैं तेरे चरणों बेनती करदा, बेनती सुनना कर। और ना मांगत हो तुम ते कश, चाहत हो चित मैं सोई कीजै। परमात्मा मैं तेरे पासों कुछ नहीं मंगदा, तू अपनी रजा विच मैनूं रखना कर। जिमें तैनूं भाउंदा चंगा लगदा उस तरह करना, बस मैनूं अपनी रजा विच चलण दा बल बख्शिश करना।
बस मैं तेरे दर तो यही मंगदा हाँ। सो गुरु सबारे इस प्रकार सतगुरु जी एक अकाल पुरख वाहिगुरु के उपासक, अकाल पुरख नूं मनण वाले। सो सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आरंभता विच पातशाह वचन करदे कि भादोए भरम भुलाणिया दूजा लग्गा हेत। भादोए मनुखा जनरूपी भादो का महीना है। इस भादो के महीने में जिहड़े जीव इस्त्रियां हैं ये भरम भुलाणियां भरम विच भुलियां फिरदियां हैं। एक परमेश्वर नूं छड्ड के दूजा लग्गा हेत दुबदा विच फसे होण करके कै दूजिया नाल ये जीव इस्त्री हेत हित करती है। भाव एक अकाल पुरख वाहिगुरु की उपासना छड्ड के होरना देवी देवतियां दियां मड़ियां मसाणा दियां इत्यादक दी ये जिहड़ा जीव है गुरु सर जीव इस्त्री ये पूजा कर रही है। कुछ नहीं मिलना गुरु सर सानू मड़ियां मसाणियां की पूजा करके, कुछ नहीं मिलना है देवी देवतियां की आराधना करके। जे आपां अकाल पुरख वाहिगुरु की आराधना करांगे ना, अकाल पुरख वाहिगुरु के दर ते सानू सब कुछ प्राप्त हो जाना। इस करके देखो भगत साहबान जी का आपां जीवन पढ़ते हैं ना, भगत साहबान जी ने कहते देवी की आराधना की। गुरु ग्रंथ साहिब मेरे बाणी विच बचन आउंदे ने, देवी की आराधना की। देवी माँ कहते प्रसन्न हो गई, कहती अपने भगत नूं कहती कि भगत जी तू मेरा भगत है, मंग की मंगदा। तो भगत जी कहन लगे मैनूं मुक्ति देना करो। तो अगों गुरु सवारियो ये देवी कहन लगी कि मुक्त नहीं मैं दे सकती, मुक्ति नहीं मेरे बस की गल है। होर तू मेरा धन संपदा लै लै, 4 प्रकार के पदार्थ लै लै, तेन जिंदगी के सारों ऐशो आराम मिल जाएंगे, पर तेनों मुक्ति नहीं, मुक्ति मैं तेनों दे नहीं सकती, मेरे बस की गल नहीं है। तो भगत जी कहन लगे तू कहियत ही आद भवानी, मुक्त की बरिया कहाँ छपानी। कि जो मुक्ति देने की बारी कित्थे छुप गई, पर तू मुक्ति वेले हाथ खड़े कर दिते। जे तू मैनूं मुक्ति नहीं दे सकती फिर अज तो बाद मैं तेरी पूजा करनी छड्डी, तेरी आराधना छड्ड दित्ती। मैं हुण एक अकाल पुरख वाहिगुरू की आराधना कर रहा। क्यों देखो हुण ये मैं नहीं कह रहा, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच भगत जी के बचन ने। जिस गुरु ग्रंथ साहिब नाल मत्था टेकदे आ वो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानूं समझा रहे हैं। इत्थों तक भगत नामदेव साहिबां दा एक शब्द आंदा रामकली राग दे विच। ये भगत नामदेव साहिबां दा किसी पांडे नाल विचार हो रहा, तो पांडे नूं समझा रहे ने। दस्सिया कि एक अकाल पुरख दा मैं उपासक हाँ, मैं किसी देवी देवतियां की पूजा नहीं करता, मैं एक निरंकार नूं मनण वाला हाँ। भगत जी दे पावन बचन ने कि अज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाओ रे। पांडे ना विचार कर रहे हैं, कहते नाम दे ना बीठल परमेश्वर नूं देखना कीता ते नामदेव नूं मूर्ख नूं नामदेव नूं कहते वो जिहड़ा बीठल परमेश्वर समझा रहा सी। अज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाऊ रे, पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी, लांगत लांगत जाती थी। भगत नामदेव साहिबान जी कहन लगे ऐ पांडे तुसी गऊ नूं अपनी मां मानते हो, जिहड़ी तुहाडी गऊ मां ना जिहड़ी गायत्री गऊ मां, कहंदे ये किसी जिमीदार के खेत में जाके वड़ गई, जिमीदार की फसल खुआर कर दी। अगों जिमीदार नूं गुस्सा चढ़िया ना, चक्की वड्डी डांग सोटी चक्की बड़ी जोर दे उस गायत्री गां दे पैर लत्त विच मारना कीती, वो लांगत लांगत जाती थी। कहन लगे तुहाडे इस तरह गां की हालत इहो जी हो गई। पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी, लांगत लांगत जाती थी।
अगे बचन करते ने, पांडे तुमरा महादेव धौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था। कहन लगे, पांडा कहन लगिया मैं शिव जी का उपासक हाँ। भगत नामदेव जी कहन लगे तू शिव जी का उपासक, तेन मुबारक, पर मैं एक अकाल पुरख का उपासक हाँ, प्रभु का उपासक हाँ। कहन लगे देख सुन अपने महादेव बाबत भी सुनना कर। कहते तेरे महादेव के लिए किसी जजमान ने शिव जी लिए भोजन तैयार किया, उहदे घर विच वो पहुँचे आ, जो भोजन छकन लगे भोजन स्वाद नहीं सी, जिस करके गुस्से विच आके अपने गुस्से उत्ते वो कंट्रोल नहीं कर सकिया, अपने तरशूल दे नाल उस जजमान दे लड़के का खात्मा कर दिता। हुण गुरु सारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे ने, सतगुरु के बचन ने, कहते ने ते बांडे तुमरा महादेव धौले बल्द चढ़िया आव देखिया था, मोदी के कर खाना पाका बाका लड़का मारिया था। अगे बचन करते ने, कहन लग्या फिर रामचंद्र जी साडे प्रवान होए ने। नामदेव जी कहन लगे रामचंद्र जी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार ने संसार विच, पर भगवान वखरा है। भगवान एक अखंड जोत है, कदे बुझण वाली नहीं है। कहन लगे सुन फिर अपने रामचंद्र बाबत। कहन लगे पांडे तुमरा रामचंद सो भी आव देखिया था, रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी। कहन लगे देख रामचंद्र भी समय अनुसार संसार विच आए, पर कहते होया कि रावण सेती सरबर होई। रावण दे नाल सरबर दा अर्थ लड़ाई, युद्ध होया, जंग होया। उस जंग दे विच कहते अपनी जोई जड़ी घर वाली नूं गवा लिया, भाव सीता नूं त्याग दिता सी। सीता नूं रावण लैके गया सी, अशोका बाग च रखिया। उस तो बाद जित प्राप्त हुई, वापस आया तो सीता ते रामचंद्र दोनों वापस आए महलों दे विच। ते जदों रामचंद्र जी विचरते हुए जा रहे ने, कहते ने उस समय किसी ने ताना मारिया, कोई मियाँ बीबी आपस लड़ रही थी घर विच। पति कहन लग्या अपनी पत्नी नूं कि मैं रामचंद्र नहीं, कि जिस जिहदी घर वाली नूं रावण ने इन्ने साल रखिया ते बाद विच रामचंद्र नूं वापस रख लिया। ते गुरु सवारे ये गल रामचंद्र जी के कन्नां विच पई, ते सीता नूं कहन लग्या तुसीं तुहानूं पक्के तौर ते बनवास दिंदा, ते जिस करके सीता ने अपने प्राण त्याग दिते सन। वो इत्थे भगत नामदेव जी कह रहे ने कि पांडे तुमरा रामचंद सो भी आव देखिया था, रावण सेती सरबर होई घर की जोए गवाई थी। अगे वचन करते ने, हिंदू अन्ना, हिंदू अन्ना तुरकू काना। हुण अन्ना किवें है, अगली पंक्ति फिर उत्तर दिंदे ने, कहते हिंदू अन्ना तुरकू काना, दोहां ते ज्ञानी सियाणा। दोनों विचों ज्ञानवान पुरुष सियाणा है। कहते क्यों, कारण की है? कहते हिंदू पूजै देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया, जह देहुरा ना मसीत। हिंदू अन्ना इस करके है क्योंकि हिंदू दे पता नहीं किन्ने भगवान ने, 33 करोड़ देवते हैं। जदों दी ये गल करते हैं उदों दे गुरु सारे इन्नी मनुखता की गिणती भी नहीं सी। 33 करोड़ देवते, 9 लाख दुर्गा मनिया गई, होर पता नहीं किन्ने देवी देवते ने। पत्थरां नूं मत्था टेकी जाने, इस करके अन्ना तुरकू काणा। जिहड़ा तुरक काणा क्यों? क्योंकि वो केवल ते केवल मक्के मदीने दे विच ही खुदा नूं मनदा कि खुदा मक्के मदीने विच है। ये भरम है, भादो भरम भुलाणी है, ये भरम पिया होया मन विच। मक्के मदीने विच ही वो केवल खुदा नूं मनदा। पर भगत नामदेव साहिबान जी कहते नहीं, जिहड़ा ना दिहुरियां विच ना मसीतां विच नामे सोई सेविया, जह दिहुरा ना मसीत,
कि ना तो वह दिवरियां विच रहिंदा ना मसीतां विच, जिहड़ा सारियां थावां ते समाया होया, जिहदा कण कण विच वासा है, नामदेव उस मालक नूं प्रभु नूं सेवदा है, उस अकाल पुरख दी नामदेव से आराधना करता है। तो इत्थे भी सतगुरु यही बचन करते, जिमें मनुख भरम विच फसिया होया, कहते इस तरह भादो का महीना जिहड़ा है ये गर्मी का दिन महीना मन्निया गया। इस विच अत की गर्मी हुंदी है, तेजी दी बारिशां होंदियां, इक्को दम बदल काली घटा आउणी, फिर गुरु सवरेओ थोड़े समय वो काली घटा दूर हो जानी, भले भरम पा जाना मन विच कि बरखा आ रही है, बारिश हो रही है, फिर बदल उड़ जाने। तो इस तरह ये भरम विच पाउण वाला। तो सतगुरु कहते इस तरह जीव तू भी अपनी जिंदगी विच विचरदा होया तू भरम विच विचर रहा है। भरम तैनू ऐसा है, तू संसार विच विचरदा इंज सोच रहा कि जिमें मैं सदीवी काल लई इस संसार घर विच रहना है। ये बहुत बड़ा साडे मन विच भरम है। तो भरम गुरु सवारे ये असल विच कोई स्थिर रहन वाला नहीं है। देखो दिन चढ़दा फिर रात हुंदी है, रात बतीत होंदी फिर दिन शुरू हो जाता। सतगुरु ने सानू समझाया है कि जे जिंदगी तेरी लंघ रही है, एक दिन तेरी जिंदगी समाप्त होनी है, भाव रात जिंदगी च आनी है तो खत्म होना है। रात आई है तो अगे तेनों जन्म फिर मिलना है, फिर तेरा सूर चढ़ेगा, भाव फिर तू जन्म लैके संसार विच आवेगा। वो वखरी गल है कि तू पता नहीं की बनना, वो तेरे कर्म ने, अंतिम श्वास है जो तेनों जीवन मिलेगा। हो सकता पता नहीं किहड़ा शरीर प्राप्त होना है। रूह तो उही है ना, रूह विचरदी है। शरीर वखरे वखरे गुरु सर धारने पैंदे ने। जिवें आपां एक वस्त्र पहनते हैं, शरीर नूं ढक्कण लई आपां एक वस्त्र पहनते, शरीर मैं वस्त्र मैला हो गया दूजे दिन दूजा पहनते हैं। इस शरीर उही रहिंदा अंदर, पर वस्त्र साडे बदले जाते हैं, वस्त्र चेंज हो जाते हैं, शरीर साडा उही है। तो इस तरह गुरु सवारे रूह एक हुंदी है, जिंद एक हुंदी है, ते पर शरीर जिहड़े वखरे वखरे हो जाते हैं। वखरे वखरे शरीर धारण करके जीव फिर बार बार संसार जमदा ते मरदा है। पर जीव नूं ये भरम पिया होया कि जिमें मैं सदीवी काल लई संसार दे विच रहना। पर पातशाह कहंदे नहीं, कोई स्थिर रहन वाला नहीं, ये तेरे विच बड़ा भरम है। इस तरह ही भादो ये भरम भुलाणी आ। मनुखा जनु भी भादो दे महीने विच जीव इस्तरियां भरम विच भुलाणियां भुलियां फिरदियां हन। दूजा लगा हेत एक परमेश्वर वाहिगुरू नूं छड्ड के दूजा लगा है देवी देवतियां दी इत्यादक इन्हां दी पूजा विच लगे हुए ने, कर्म कांडां विच लगे हुए हन। कहते दूजिਆਂ ਨਾਲ हित प्रेम करदे, एक पति परमेश्वर नूं छड्ड के लख सिगार बनाया कारज नाही केत। सतगुरु कहते ने भावें इस प्रतख तौर पर इस्तरी अपने पति नूं खुश करन दे लई श्रृंगार करदी है ताकि मेरे पति परमेश्वर की मैनू प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। पर सतगुरु कहते ने जे पति नाल प्रेम नहीं आ, जे अपने पति नाल तू प्रेम नहीं करती जीव इस्तरीए, तैनू पति की कदे प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है। इस तरह लख श्रृंगार बनाया। लखां श्रृंगार किहड़े ने? पति परमेश्वर नूं खुश करन लई कदे पुट्ठे लमक गए, कदे जल धारे करन लग पे, कदे धूणियां धगाण लग पे, कदे व्रत इत्यादक रखण लग पे। ते गुरु सवारे इहो जिहे श्रृंगार करते रहे, जप तप रूपी श्रृंगार, श्रृंगार कीते हुए ने, कर्मकांड कर रहे ने, पर अंदर उस पति परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। फिर वो कीता होया श्रृंगार कहदे लई। जिन्हां दे अंदर प्रेम है ना, तो उन्होंने प्रेम के सहित उस मालक प्रभु नूं प्राप्त कर लिया। तो सतगुरु कहते चाहे लखां श्रृंगार कहते वो जीवी इस्तरी बना लवे, कहते
ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀਵ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਬਾੜੀ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤਿਤ ਸਰ ਬਰੜੈ ਢਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਕਿ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੋਹ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਦੇ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸਸੀ, ਦੇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਿਨਸਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੈਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ,
निता प्रति गुरु के दरबार में आके बैठता, कथा कीर्तन सुनता। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह की जी बाणी है बरागमी सारी बाणी है। तो सतगुरु ने एक दिन बचन किए कि घर वाली जी है वह भी अंत वेले सारे साथ छड़ देंदे ने। कहन लगे कि सतगुरु मेरा मेरी घर वाली नाल बड़ा स्नेह है, मैनू अपनी घर वाली उत्ते विश्वास है, बेशक मेरा शरीर खत्म हो जाए पर मेरी घर वाली मैनू छड्ड नहीं सकती। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज कहन लगे सिखा ये थोड़े दिन का प्यार है, जदों तक शरीर है उदों तक प्यार है, शरीर खत्म हो जाता तो हौली हौली सारे भुल जाते हैं। कहन लगे नहीं मैं नहीं मानता। सतगुरु जी ने फिर जुगती सिखाई। कहन लगे चल तू घर में जाना कर, 10वें द्वार में पातशाह सवास चढ़ाने की जुगती सिखा दी कि जदों रात नूं तैं पलंग उत्ते सोना है, तेरी घर वाली तेरे कोल होवेगी, तू अपने सवास 10वें द्वार चढ़ा के सो जावीं। जुगती सिखाई है। घर में आया, प्रशादा पानी छकिया, सोले की बाणी की, पाठ किया तो गुरु सवारे फिर रात वेले कहते अपने सवास चढ़ा ले। घर वाली देखती है शरीर ठंडा पै गया, सोचती है कि मेरा पति चढ़ाई कर गया। विचार करती है जे मैं हुण रोई तो सारी रात मैनू जागना पवेगा, तो सवेर वेले मैं रोला पावांगी कि मेरा घर वाला चढ़ाई कर गया। फिर मन में विचार आती है कि मैं भुखी सारी रात भुखी रहांगी। कहते ने उस समय ने गुरु सवारे चूरी तैयार की, चूरी खाना की, थोड़ी जी खीर बना ली खाण वास्ते, जिवें गुर इतिहास दे बोल ने। कहते ने खा के इस तरह चूरी खाधी कुट के, तो जो सवेर का समा सवेरे उची उची रोन लग पे, दिहतड़े पान लग कि मेरा पति चढ़ाई कर गया। सारे इकट्ठे हो गए रिश्तेदार आंढी गुआढ़ी। तो उस समय गुरु सवारिओ जदों लिजाण की वारी आई ना, अंत वेले मुख दिखाया जाता है। परिवार के जी अपने बड़े का परिवार के जी का मुख देखते हैं। तो एक घर वाली दिहतड़े मारदी नाले कहती है, बैन पाउंदी है, कंता स्वर्ग सिधारिया मैनू भी कुछ भाख। कंता स्वर्ग सिधारिया मैनू भी कुछ भाख पा, मैनू कुछ आखना कर। अगों गुरु सवारे उत्तर देना की, तो जो इतिहास विच ने, जैसे पायस जैसे चूरी खाया तैसे पायस चाख। तो उठ के बैठ गया, नाले कहन लग्या जिमें रात वेले चूरी कुट के खाना की सी ना, तो खीर इन्नी हुई है, कहता तू हुण खीर खाना कर। सारे देख के हैरान, तेनू गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आए ने। सतगुरु ने दस्या कि भाई ये है, इत्थों तक जो तक साडा शरीर है उदों तक संबंध है, तो जो शरीर खत्म हो जाता तो फिर ये झूठे प्यार ने एक दिन हौली हौली खत्म हो जाते। संजोगां करके साडा मिलाप होया, जो संजोग मुक गए तो उदों गुरु सवारे विछोड़ा पैना ही है। इस करके जिन्ने सानू सवास मिले ने, उस सवासां दे राहीं आपां उस मालक का शुक्र करिए, उन्होंने मालक नूं चेते करिए। तो सतगुरु इत्थे बचन करते ने, जित दिन देह बिनससी तित वेल है कैसन प्रेत। जो कहते ये देह ही बिनस जाती है, खत्म हो जाती है, उस दिन उही परिवार के जीव, परिवार के मैंबर, घर वाली, बच्चे, माता पिता इत्यादक, ये सारे जे सुपन च दिखाई देवे, ये सारे प्रेत प्रेत आखन लग पैंदे, भूत भूत आखते हैं। पकड़ चलायन दूत जम किसै न देनी भेत। जिहड़े धर्मराज दे भेजे हुए जमदूत वो जीव नूं फिर पकड़ के लैके जाते हैं। जदों वो लैण वास्ते आते ना, किसी नूं भेद नहीं दिंदे आ। ये उस जीव नूं पता हुंदा जिहदी वारी आउंदी है, उहनूं पता हुंदा जां जमदूतां नूं पता हुंदा। बाकी परिवार के मैंबर कोल बैठे हुंदे ने, भैन भरा, माता पिता, घर वाली, बच्चे इत्यादि रिश्तेदार, मित्र सज्जन, किसी को भेद नहीं होंदा कि फलाने की अज मौत है, फलाने ने चढ़ाई करना। हाँ एक गल होर है, जिहड़े गुरमुख जन ने, गुरमुख रूहां जिहड़ा नाम जपिया बंदगी की है, उन्होंने पता होंदा कि असीं फलाने दिन संसार तो जाना है।
क्योंकि उन्होंने बंदगी करके उन्होंने इस लोक की सोझी भी तो परलोक की सोझी भी आ जाती है। उन्होंने पता लग जाता कि साड़ी जी सवासां रूपी पूंजी इन्नी लिखी हुई है, ये तो आप एक भी सवास वध नहीं ले सकते गुरमुख जनां नूं। तो वह फिर गुरमुख जन ज्योति जो अपने शरीर में त्यागन तो पहला ही गुरु दस देंदे सन अपने परिवार में कि आप अज काम कर लो, साडा समा आ गया है। इस करके सतगुरु कहते जमदूत जो लैण वास्ते आते ना, मौत जो दस्तक दिंदी है उदों किसी नूं भेत नहीं दिंदे। जिहदी वारी आती ना उन्होंने आके फिर वो दबोच लैंदे ने। कोई भी उन्हां पासों फिर उस समय नूं गुरु टाल नहीं सकता, समा नहीं टल सकता, जिन्नी मर्जी आपां कोशिश कर लीए। क्योंकि जदों समा आ गया तो उदों वो समा टालना बड़ा औखा है। हाँ गुरु कृपा कर दे तो उस समय नूं टालिया जा सकता है। गुरु मुरदियां च सवास पाने वाला, मृतक को पायो तन सासा बिशरत आन मिलाया। गुरु विच ये ताकत है, मुरदियां नूं जिउंदा करना, जिउंदियां नूं मुरदा बनाने वाला गुरु विच ये ताकत है। गुरु समर्थ है। पर गुरु सवारे किसी नूं जदों जमदूत आंदे भेद नहीं दिंदे हन, पकड़ के वो लै जाते हैं। छड्ड खड़ोते खिन है माए जिन स्यों लगा हेत। गुरु पातशाह जी कृपा करते ने कि जिन्हां दे नाल इन्ना हेत लाया होया सी, इन्ना जीव तेरा प्यार सी। तू कहंदा सी मेरे माता पिता, मेरी घर वाली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे मित्र सज्जन, कहते खिण माहे खिण मात्र दे विच। खिण की कहंदे ने? खिण किहनूं कहंदे ने? अख झमकण दा जिहड़ा समा, उह तों पहलां दा समा उन्होंने क्या आख्या जाता खिण। कि इन्ने समय दे विच ही कहते वो परमात्मा जो जबारी आती है क्षण मात्र छड्ड के चलिया जाता तो काढो काढो हो जाती कि कोई रोक नहीं सकता है। हथ मरोड़ै तन कपे सियाहो होआ सेत। जीव गुरु सवारे जो अंतिम समा आउंदा, मौत दस्तक दिंदी है, उदों जीव फिर अपनी जीवन वाल देखता कि मना मैनू जिंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल प्राप्त होए सी, मैंने इन्नी उम्र प्राप्त होई सी, नाम तो बिना मैं अपनी जिंदगी व्यर्थ गवा दी। उदों फिर ये पश्चाताप करदा, हत्थां नूं मरोड़दा, पश्चा झूरदा है कि हुण की करा मैं। तन कपे बुढ़ापे दे विच गुरु सर हत्थ जिहड़े ने मुड़ जांदे ने। हत्थां विच जिहड़ी वो ताकत ने, जिहड़ी जवानी विच ताकत है, बुढ़ापे विच नहीं रहिंदी है। ते तन कपे शरीर साडा जिहड़ा कंबण लग पैंदा है। शरीर जिहड़ा है, शरीर का रंग काला, कहते स्याह हुआ सेर चिट्टा हो जाता है। तो जिमें गुरु सवारे आपां सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना, भगत भीखण जी के बचन ने। भगत जी कहते ने नैनो नीर बह तन खीना भे केस दुध बानी रूदा कंठ शब्द निज उचर है अब क्या कर है प्राणी राम राय होहे वैद बनवारी अपने संत है लेह उबारी। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे विच कहंदे नेत्रां विचों नीर वगन लग पैंदा, लाइट जिहड़ी है नेत्रां दी घट जाती है। कई बारी ऐसा हुंदा है कि बिल्कुल लाइट बंद हो जाती है, मनाखे हो जाते हैं। कई जिन्होंने शूगर की प्रॉब्लम है, बहुत तादाद में इहो जिहे केस देखना कि ते शूगर वालियां दी लाइट चली जाती, कई बारी असर होंदा है। तो जिहड़े केस ने पहला काले शाह केस सन वो चिट्टे हो गए, के भे के दुध बानी गल नाल ताड़ ताड़ के बुलंद आवाज़ विच बोलदा सी। अज कहंदे हालत इहो जी हो गई रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै। काल कहता बलगम नाल भर गया, बोलन की कोशिश करता तो बोलिया नहीं जा रहा। कहते प्राणा धारी जीव हुण तू की करेगा। पर सतगुरु कहते ने रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करे प्राणी राम राय होए है होहे वैद बनवारी
अपने संत है ले उबारी। कहते जे रमंती राम दे लड़ लगांगे ना परमेश्वर दे लड़, कहते फिर वो जिहड़ा जगत दा माली है वो रखिया करन वाला है, अपने संत जनां नूं वो वाल बचा लैंदा है, बांह पकड़ लैंदा है। इस करके बुढ़ापे च ये हालत हो जाती शरीर की, हथ मरोड़ा तन कपे स्याह होवा सेत, कहते इस तरह की हालत हो जा, हथ मुड़ जाते ने, शरीर कंबन लग पैंदा है, स्याह कहते शरीर सारा एक रंग हो जाता है। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संधड़ा खेत। असल विच कहते जीव दे अपने एक कर्म ने, जिहो जिहा कहते ये बीज बीजदा ना ओहो जिहा अगों फल मिलता है। आपे बीज आपे ही खाओ, ये जिहड़ा शरीर है एक कर्म भूमि है। जिहो जी आपां फसल बीज दी, जिमीदार ने जो फसल बीजी है उन्होंने जी प्राप्त हो, झोने की बद झोना प्राप्त होवेगा, जे कणक की बीजी कणक मिलेगी, जे दाल सब्जियां उगाना की सब्जियां प्राप्त होणगियां। इस तरह गुरु सवारे अपने जीवन च विचरदियां होइयां जिहो जी आपां पुण्य दान इत्यादि करांगे, कर्म करांगे, उहदे मुताबक सानू फल मिलेगा। ये कर्म भूमि साडा शरीर है, जिहो जी बीजांगे वो खानू प्राप्त करना पवेगा। इस करके पातशाह कहते ने कर्मा संधड़ा खेत, ये शरीर कहते कर्मां दा संधड़ा खेत है। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। नानक गुरु जी उचारण करते हैं, कहते हे प्रभु शरणागति, मैं तेरी शरण विच आया हाँ, मैं तेरी शरण तकना कीती है, किरपा करो। नानक नू चरण बहुत प्रभ देत। हे प्रभु जिहड़े तेरे सुंदर जिहड़े चरण ने, चरण कैसे ने, ये बहुत जहाज की न्याई हैं। जिवें जहाज उत्ते सवार हो के आपां समुंदर नूं पार कर सकता, समुंदरां नूं पार कर सकते हैं, इस तरह आप जी दे चाहे प्रभु जी चरणां नाल जुड़ के असीं संसार समुंदर नूं पार कर सकते हैं। हे प्रभु जी कृपा करो, नानक नूं अपने चरणां दा जहाज देना करो। से भादोए नरक न पाई है, गुर रखण वाला हेत। गुरु साहबान जी बख्शिश करते हैं कि मनुखा जन्म रूपी भादो के महीने विच वो जीव नूं नरकां विच नहीं पाया जाता है, वो नरकां तो बच जाते हैं जिन्हां नूं गुरु रखण वाला होवे, जिन्हां दी गुरु रखिया करदा होवे, जिन्हां दा हेत गुरु नाल होवे, जिन्हां दा प्रेम गुरु नाल होवे, ते गुरु उन्हां दी बांह पकड़ लैंदा है। गुरु उन्हां गुरमुखां नूं जम्मण मरण तो रहत कर दिंदा है। वो जम्मण मरण तो रहत होके सਦੀवी काल दे गुरु पातशाह के चरणों में समा जाते हैं। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोल